دنیا کی تاریخ ایسے بادشاہوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی رعایا کو انصاف نہیں بلکہ خوف میں رکھا۔ ان کے دربار ہیبت سے گونجتے تھے اور ان کے تخت کے سائے میں انصاف نہیں بلکہ ظلم کا راج ہوتا تھا۔ یہی حال اس سلطنت کے بادشاہ کا بھی تھا۔ وہ اپنی سخت مزاجی اور صفاقی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے دربار کی دیواریں اس کی آواز سے لرزتی تھیں اور وزیروں کے چہروں پر ہمیشہ خوف کا سایہ رہتا۔ رعایا کے لیے بادشاہ کا ذکر خوف اور اندیشے کی علامت تھا۔ وہ اپنی رعایا کو انصاف دینے کے بجائے ان پر قہر ڈھاتا۔ اگر کوئی معمولی خطا کرتا تو کوڑوں سے مارا جاتا، اگر کوئی کسان ٹیکس ادا نہ کرتا تو اس کے گھر کو آگ لگا دی جاتی اور عورتوں اور بچوں تک پر رحم نہ کیا جاتا۔ رعایا کی زندگی غلامی اور دہشت کی علامت بن چکی تھی۔ اس کے حکم کے آگے سب مجبور تھے۔ وزیر ایک دن دربار میں حاضر ہوا اور بولا، جہاں پناہ، آج 3 کسانوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا ہے، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر قہر کی لکیریں ابھریں اور اس نے غرور بھرے لہجے میں کہا، انکار؟ میرے حکم سے انکار؟ لے جاؤ انہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دو اور اگر کوئی چیخے یا روئے تو اس کی زبان کاٹ دینا۔ وزیر سجدہ ریز ہو گیا اور سپاہی حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہوئے۔ محل کی شان و شوکت کے برعکس گلیوں میں غربت اور بدحالی تھی۔ کچے مکانوں میں بچے بھوکے بیٹھے تھے، عورتیں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھیں، کسان اپنی برباد فصلوں کو دیکھ کر روتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت ہاتھ اٹھا کر آسمان سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ! یہ بادشاہ ہم پر عذاب بن کر نازل ہوا ہے، اس پر اپنی رحمت فرما، یا اسے ہدایت دے یا اس کی سلطنت چھین لے۔ ایک کسان آہ بھرتے ہوئے بولا، ہماری محنت کی کمائی چھین لی جاتی ہے۔ اگر بیٹی کے جہیز کے لیے بچت کریں تو بادشاہ کا ٹیکس آ جاتا ہے، اگر کھیت سے اناج لائیں تو سپاہی چھین لیتے ہیں۔ ایک دوسری عورت نے روتے ہوئے کہا، ہماری دعائیں آسمان تک جا رہی ہیں، ایک دن اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ رعایا کے دلوں میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، یا تو یہ مر جائے یا یہ تخت چھن جائے۔ لیکن کائنات کا قانون مختلف ہے۔ اللہ چاہے تو پتھر دل کو بھی ایک لمحے میں نرم کر دیتا ہے۔ وہ لمحہ قریب تھا۔ ایک دن صبح کے وقت محل کی دیواروں پر سورج کی پہلی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ بادشاہ شکار کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے ساتھ نہ وزیر تھے نہ سپاہی، صرف وہ اور اس کا تیز رفتار گھوڑا۔ وہ اپنی سلطنت کے جانوروں کو بھی اپنی رعایا سمجھتا تھا اور خود سے کہہ رہا تھا، آج میں شکار کروں گا، دیکھوں گا کس جانور کا خون میرے تیر سے گرے گا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز جنگل کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ درختوں کی سرسراہٹ، پرندوں کی نغمگی، ہوا کی ٹھنڈک اور گھوڑے کی رفتار مل کر ایک الگ دنیا پر سما باندھ رہی تھی۔ بادشاہ کو شکار کی تلاش تھی، لیکن تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور طے کیا ہوا تھا، ایک ایسا منظر جو اس کی آنکھوں سے غرور کا پردہ ہٹا دے گا۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے شور سنائی دیا۔ ایک کتا زور زور سے بھونک رہا تھا اور آگے ایک ننھی سی لومڑی اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ لومڑی اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہی تھی تاکہ کسی بل میں گھس کر اپنی جان بچا سکے۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر دی اور دیکھنے لگا کہ یہ تعاقب کہاں ختم ہوگا۔ اس کے دل میں ایک انجان سی بے چینی ابھرنے لگی۔ بادشاہ کی نظریں اس جنگل میں بھاگتی ہوئی ننھی سی لومڑی پر جمی ہوئی تھیں جو اپنی جان بچانے کے لیے پوری قوت سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک وحشی کتا اپنی زبان باہر نکالے خونخوار انداز میں بھونک رہا تھا۔ لومڑی کا ننھا سا وجود خوف اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے پیچھے دیکھتی اور پھر تیزی سے آگے بڑھتی، لیکن کتے کی رفتار کہیں زیادہ تھی۔ آخرکار لومڑی ایک چھوٹے سے بل کے دہانے تک پہنچی، لیکن بدقسمتی سے عین وقت پر کتے نے اس کی ٹانگ دبوچ لی۔ لومڑی کی چیخ نے جنگل کی خاموشی کو چیر دیا، خون بہنے لگا اور وہ ہمیشہ کے لیے لنگڑی ہو گئی۔ بادشاہ کا دل لمحہ بھر کے لیے کانپ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھا کہ طاقتور کس طرح کمزور کو بے رحمی سے کچل ڈالتا ہے۔ وہ حیرت زدہ تھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ کیسا منظر ہے؟ ایک کمزور پر دوسرا طاقتور ٹوٹ پڑا۔ کیا یہ میری سلطنت کی جھلک نہیں؟ کیا میری رعایا بھی اسی لومڑی کی طرح بے بس نہیں ہے؟
लेकिन अभी वो सोच ही रहा था कि कुदरत ने अगला बाब उसकी आंखों के सामने खोल दिया। वही कुत्ता जिसने लोमड़ी की टांग जख्मी की थी ज्यादा देर खामोश ना रहा। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसकी नजर एक आम आदमी पर पड़ी। कुत्ता भौंक भौंक कर उस पर झपटने लगा। आदमी पहले तो खौफजदा हुआ, पीछे हटने लगा, लेकिन जब कुत्ते ने गुस्से में मजीद हमला किया तो आदमी का खौफ गुस्से में बदल गया। वो जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से कुत्ते पर दे मारता है। पत्थर की जोरदार जंप से कुत्ते की टांग टूट जाती है। जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगता है, रोता है, चीखता है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता। बादशाह की आंखें हैरत और खौफ के इम्तिजाज से फैल गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोचने लगा, ये क्या मामला है? जो अभी तक ताकतवर था वो भी पल भर में कमजोर बन गया। जुल्म करने वाला खुद जुल्म का शिकार हो रहा है। बादशाह के दिल पर पहली बार एक लर्जा तारी हुआ। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वही आदमी जो कुत्ते को जख्मी करने के बाद आगे बढ़ा था, कुछ ही देर बाद एक घोड़े के करीब से गुजरा। घोड़ा किसी बात पर चर्चा सा हुआ और अचानक अपने पिछले पैर से एक जोरदार लात मार बैठा। लात आदमी के घुटने पर लगी और वो हड्डियों के टूटने की खौफनाक आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आदमी की चीख जंगल में गूंज उठी। इसका घुटना टूट गया था और वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। बादशाह ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और उसका वजूद कांप उठा। उसके लबों पर लरसते हुए अल्फाज निकले, ये कैसा सिलसिला है? हर जुल्म का बदला फौरी मिल रहा है। हर कहर पलट कर काहिर पर ही गिर रहा है। क्या ये नया अक्स है जो मैं देख रहा हूं? क्या ये मेरी जिंदगी की तरफ कोई इशारा है? लेकिन कुदरत ने उसे मजीद गहरा सबक देना था। वो घोड़ा जिसने आदमी को जख्मी किया था अपनी रफ्तार में दौड़ता रहा, मगर अचानक सामने एक गहरा गड्ढा आ गया। घोड़ा पूरी शिद्दत से उसमें जा गिरा और जोर से जमीन पर गिरा। उसके जोरदार गिरने की आवाज सुनकर फिजा दहल गई। उसकी अपनी टांग टूट गई। वो भी अब लंगड़ा हो चुका था। बादशाह के दिल पर एक बिजली सी गिरी। वो घोड़े से नीचे उतरा, जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और लरसती आवाज में कहा, या अल्लाह, ये सब मुझे क्यों दिखा रहा है? ये कैसा पैगाम है? बादशाह जंगल की मिट्टी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो शायद पहली बार उसके हुरूर को धो रहे थे। वो जिसके हुक्म पर हजारों सिपाही हरकत में आ जाते थे, आज अपनी बेबसी और खौफ में लरज रहा था। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और लरसती आवाज में कहा, मैं समझ गया। जुल्म कभी रायगा नहीं जाता। बुराई एक दायरा है जो पलटकर इंसान को अपनी लपेट में ले लेती है। मैंने अपनी रयाया के साथ वही किया जो लोमड़ी के साथ कुत्ते ने किया। मैंने उनके घरों को जलाया, उनकी इज्जतें रौंदी, उनकी मासूम ख्वाहिशात कुचल डाली। और अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि ताकतवर का अंजाम भी बिलाखिर कमजोरी और बर्बादी है। बादशाह के दिल की दुनिया बदलने लगी। वो घोड़े से दोबारा सवार हुआ, मगर उसके दिल पर अब हुरूर का बोझ नहीं था, बल्कि निदामत का बोझ था। महल वापस आकर उसने रयाया को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। लोग हैरान हुए, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह जब भी सबको बुलाता है तो कोई नया फरमान आता है जिसमें जुल्म और बोझ के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन इस दिन मंजर मुख्तलिफ था। बादशाह ने तख्त पर बैठकर अपनी रयाया की तरफ देखा कि चेहरे पर वही गुरूर की झलक नहीं, बल्कि नरमी और शिकस्तगी का अक्स था। उसने बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरी सल्तनत के लोगों, आज के बाद तुम पर मेरा पहर नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जुल्म कभी कायम नहीं रहता। अब मेरी सल्तनत में सिर्फ अदलो इंसाफ होगा। कोई सिपाही तुम्हारा हक नहीं छीनेगा, कोई वजीर तुम पर टैक्स का बोझ नहीं डालेगा, और कोई मजलूम अब बगैर सुनवाई के सजा नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। कुछ को यकीन ही नहीं आया कि ये वही बादशाह है जो कल तक उनकी जबानें काटने का हुक्म देता था। लेकिन वक्त के साथ सब ने देखा कि बादशाह ने अपने अल्फाज पर अमल किया। उसके रवैये बदल गए। अब वो लोगों की फरियाद सुनता, मजलूम की दादरसी करता और उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करता। राया के दिलों से खौफ निकल गया और उनकी जबानों पर दुआ आ गई, या अल्लाह, हमारे बादशाह को सलामत रख जो हमें इंसाफ देता है, मगर हर दिल नेक नहीं होता। महल के अंदर बादशाह का वजीर, जो पहले उसके जुल्म का सबसे बड़ा सहारा था, अंदर ही अंदर जलने लगा। वो सोचता रहा, ये कैसा वक्त आ गया, जहां पहले हम लूटते थे वहां अब अदल की बात हो रही है।
बादशाह तो नरम दिल हो गया है, लेकिन मैं क्यों ना मौके से फायदा उठाऊं। अब जब कोई हमें रोकने वाला नहीं तो मैं अपनी तिजोरियां भर सकता हूं। उसके दिल में लालच का शौहला भड़क रहा था। एक दिन वजीर उन्हीं नापाक ख्यालात में डूबा हुआ महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसका जहन मंसूबे बना रहा था कि किस तरह रयाया से खुफिया तौर पर दौलत ऐंठेगा, किस तरह बादशाह को धोखा देगा और किस तरह अपनी जेबें भरेगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। उसका कदम अचानक फिसला और वो सीढ़ियों से बुरी तरह नीचे जा गिरा। गिरने की आवाज महल की दीवारों में गूंज उठी। लम्हों में उसकी गर्दन टूट गई और वो वहीं दम तोड़ गया। लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन अब कुछ बाकी ना रहा। वो वजीर जिसने अपनी चालाकी और लालच से दौलत के ख्वाब देखे थे, मौत के एक झटके में सब ख्वाबों समेत खत्म हो गया। वजीर की अचानक मौत ने महल में एक खामोश खौफ फैला दिया। रयाया ने उस खबर को सुना तो लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये अंजाम लालच का है। जिसने जुल्म में बादशाह का साथ दिया, उसको भी कुदरत ने उसी लम्हे पकड़ लिया। बादशाह को जब वजीर की मौत की खबर मिली तो वो गहरी सोच में डूब गया। एक दिन वजीर उन्हीं नापाक ख्यालात में डूबा हुआ महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसका जहन मंसूबे बना रहा था कि किस तरह रयाया से खुफिया तौर पर दौलत ऐंठेगा, किस तरह बादशाह को धोखा देगा और किस तरह अपनी जेबें भरेगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। उसका कदम अचानक फिसला और वो सीढ़ियों से बुरी तरह नीचे जा गिरा। गिरने की आवाज महल की दीवारों में गूंज उठी। लम्हों में उसकी गर्दन टूट गई और वो वहीं दम तोड़ गया। लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन अब कुछ बाकी न रहा। वो वजीर जिसने अपनी चालाकी और लालच से दौलत के ख्वाब देखे थे, मौत के एक झटके में सब ख्वाबों समेत खत्म हो गया। वजीर की अचानक मौत ने महल में एक खामोश खौफ फैला दिया। रयाया ने उस खबर को सुना तो लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये अंजाम लालच का है। जिसने जुल्म में बादशाह का साथ दिया, उसको भी कुदरत ने इसी लम्हे पकड़ लिया। बादशाह को जब वजीर की मौत की खबर मिली तो वो गहरी सोच में डूब गया। इसने अपने दिल से कहा, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये भी एक इशारा है। जुल्म और लालच की राह हमेशा अंधेरे की तरफ ले जाती है और अदल और रहम ही वो रोशनी है जो इंसान को असल बादशाही अता करती है। इस दिन के बाद बादशाह मजीद बदल गया। अब वो ना सिर्फ इंसाफ करता बल्कि खुद भी आजिज़ी के साथ अपनी राया के दरमियान निकलता। वो गलियों में चलता, लोगों से पूछता, तुम्हें किसी ने तंग तो नहीं किया, किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हुई। राया हैरान रह जाती कि कल का वो जाबिर आज उनके सामने एक खादिम की तरह खड़ा है। औरतें उसके लिए दुआएं करती, बच्चे उसको देखकर खुशी से तालियां बजाते और बूढ़े लोग उसके लिए आंखों से आंसू बहाकर दुआ करते, या अल्लाह इसका अंजाम अच्छा कर जैसे उसने हमारा हाल अच्छा कर दिया है। वक्त गुजरता गया और सल्तनत में अमन और सुकून छा गया। जो जमीन पहले जुल्म से जलती थी अब इंसाफ से सरसब्ज होने लगी। खेतों में अनाज लहलहाने लगा, बाजारों में खुशी की रौनक लौट आई और घरों में सुकून वापस आ गया। राया के दिलों से वो खौफ निकल गया जो बरसों से उन पर मुसल्लत था। अब उनके दिलों में मोहब्बत और शुक्रगुजारी ने जगह ले ली थी। लोग कहते, ये सब अल्लाह का निज़ाम है। जब ताकतवर तौबा करके अदल की राह इख्तियार करता है तो ज़मीन खुद बरकत देने लगती है। बादशाह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरस सूफिया और उल्मा की सोहबत में गुजारे। वो अक्सर कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ताकत वक्ती है लेकिन अदल दायमी है, जुल्म लम्हाती है लेकिन नेकी का असर नस्लों तक चलता है। एक दिन उसने राया को इकट्ठा किया और आखिरी नसीहत करते हुए कहा, मेरे बाद अगर तुम चाहते हो कि यह सल्तनत बाकी रहे तो हमेशा अदल पर कायम रहना। कभी किसी कमजोर को मत रोना देना, क्योंकि उसकी फरियाद आसमान तक जाती है और जब आसमान से फैसला आता है तो कोई तख्त सलामत नहीं रहता। ये अल्फाज सुनकर राया के दिल पिघल गए। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिलों में सुकून था कि उनका बादशाह अब वही शख्स नहीं रहा जो कभी जुल्म का देवता था। अब वो एक ऐसा चिराग बन गया था जो अपने जलने से दूसरों को रोशनी देता है। बादशाह ने दुनिया को अलविदा कहा तो उसके जनाजे पर हजारों लोग मौजूद थे। हर शख्स रो रहा था लेकिन दिल से दुआ दे रहा था, या अल्लाह उसे मुआफ फरमा। उसने जुल्म छोड़ दिया और अदल को अपनाया। यूं एक जालिम बादशाह की कहानी सूफियाना सबक के साथ खत्म हुई। ये सबक के जुल्म का अंजाम हमेशा रुसवाई है और अदल का रास्ता ही इंसान को असल बादशाही बख्शता है। ताकत वक्ती है लेकिन इंसाफ और रहम वो दौलत है जो इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखते हैं।
یہ الفاظ سن کر رعایا کے دل پگھل گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دلوں میں سکون تھا کہ ان کا بادشاہ اب وہی شخص نہیں رہا جو کبھی ظلم کا دیوتا تھا۔ اب وہ ایک ایسا چراغ بن گیا تھا جو اپنے جلنے سے دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ بادشاہ نے دنیا کو الوداع کہا تو اس کے جنازے پر ہزاروں لوگ موجود تھے۔ ہر شخص رو رہا تھا، لیکن دل سے دعا دے رہا تھا، یا اللہ اسے معاف فرما، اس نے ظلم چھوڑ دیا اور عدل کو اپنایا۔ یوں ایک ظالم بادشاہ کی کہانی صوفیانہ سبق کے ساتھ ختم ہوئی۔ یہ سبق کہ ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہے اور عدل کا راستہ ہی انسان کو اصل بادشاہی بخشتا ہے۔ طاقت وقتی ہے، لیکن انصاف اور رحم وہ دولت ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں۔